Hello everyone, welcome to Peakover. I'm Garima Bhardwaj and today we'll cover the introduction part of DBMS, which covers all the important key points of the database management system. So let's begin. So database management system is a software that helps organize, store and manipulate large amount of data in the structured and efficient way. And it also ensures about data integrity, security and ease of use. इजी वर्ड्स में अगर हम लोग बोलें तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको ये सिस्टम स्टोर और मैनेज करता है। अब हम लोग देखते हैं डेटाबेस सिस्टम और फाइल सिस्टम में डिफरेंस। ये एक टेबल दी हुई है जिसके हम लोग अगर सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख लेंगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड फाइल सिस्टम इज दैट अ फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज and maintains files on a storage device. It manages the storage and retrieval of data, and the database management system or DBMS is a software application that allows you to access, create and manage databases. Now we'll move to the database system concepts and architecture. These are some important parts of database system, that is data, database, schema, data independence, query language and transactions. We'll learn this one by one. Now we'll see the architecture of database system, which involves three architectures: one tier, two tier and three tier architecture. In one tier architecture, the database is directly available to the user and the user can directly sit on the DBMS and use it. That is, the client, server and the database are all present on the same machine. And in two-tier architecture, the two-tier architecture is similar to the basic client-server model. The application at the client end directly communicates with the database at the server side. APIs like ODBC and GDBC are used for the interaction. Now the three-tier architecture, in this type, there is another level between the client and the server. The client does not directly communicate with the server. Instead, it interacts with the application server, which further communicates with the database system, and then query processing and transaction management takes place. Now move to the data model scheme. So this is a structured blueprint that defines the organization, relations, constraints and attributes of data within the database. In easy words, we can say that it is a structured plan that outlines how data will organized, related and stored in the database. It helps designer and users to understand the database. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट सपोज हम लोग के पास एक लाइब्रेरी का डेटाबेस है जिसमें हम लोग एक बुक का टाइटल देखते हैं. उस टाइटल को हम लोग कहते हैं एंटिटी. और जब स्टूडेंट्स बोरो करते हैं किसी बुक को तो उसे कहते हैं रिलेशनशिप. और प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की उन बच्चों का रोल नंबर होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है और यूनिक होता है. और फॉरेन की क्या होती है? उस प्रोडक्ट यानी कि बुक की आईडी जो कस्टमर ने बाय करा होता है. नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंसेस. इंस्टेंसेस क्या होता है? जो उस रियल टाइम में डेटाबेस में जो डेटा प्रेजेंट होता है वो इंस्टेंस होता है. लेट सपोज हम लोग देख लें हम लोग का यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हर साल बदलता है. तो जैसे इस साल का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में जो डेटा होगा उस डेटा को हम लोग कहेंगे इंस्टेंस. सो नाउ नेक्स्ट इज डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा डेफिनेशंस in one level without affecting the schema definition in the next higher level is called data independence. इसका मतलब लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है और उसमें रो और कॉलम्स दिए हुए हैं. तो उसमें अगर हम किसी भी कॉलम या रो के किसी भी डेटा को चेंज करेंगे तो उससे किसी भी दूसरे डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ना ही कोई इफेक्ट पड़ेगा. तो इसे कहते हैं हम लोग डेटा इंडिपेंडेंसी. सो डेटा इंडिपेंडेंसी इज़ द वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ DBMS. तो DBMS independence have two types: physical data independence and logical data independence. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई फिजिकल लेवल में चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो ये होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी. और अगर लॉजिकल लेवल में कोई चेंजेस होता है तो एक्सटर्नल लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी.
Now we'll move to the database languages. So database languages are used to read, store and update the data in the database. We have 4 types of database languages, which is DDL, TCL, DML and TCL. We'll learn about these one by one. So DDL stands for Data Definition Language. इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी डेटाबेस का स्केलेटन बना सकते हैं, मतलब टेबल, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स वगैरह हम लोग इससे डिफाइन करते हैं. इसमें कुछ कमांड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रूनकेट, रीनेम, कमेंट. Second is Data Control Language, that is DCL. It is used to controlling the user access in the database and used to retrieve the stored and the saved data. Here we have 2 commands, that are grant and revoke. So grant command is used to give the permission for the user access for the privileged database, and revoke is used to take back the permission from the user. Next is Data Manipulation Language, that is DML. So Data Manipulation Language यूज़ होती है किसी भी डेटा में चेंजेस करने के लिए, यानी मैनिपुलेशन करने के लिए उसमें. In this we can easily perform operations such as store, modify, update and delete on the database. Here are some commands. These are some commands used in DML. Select is used to record a specific table data. Insert is used to insert the data in the database. Update is used to change or modify the existing data. Delete is used to delete the data, and merge allows us to insert and update the operation. Now we'll see TCL, that is Transaction Control Language, in which the commands are used to committing or undoing transactions in the database. And the commands are commit and rollback. Commit is used to save the changes permanently, and rollback is used to undo one or more changes or to get restored data to the original since the last commit. इंटरफेस क्या है? एक प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है कोई भी क्वेरी करने के लिए डेटाबेस में विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग लैंग्वेज. मतलब हमें एसक्यूएल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी अगर इंटरफेस होएगा तो. चेंजेस मतलब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा या एडिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग, मतलब कुछ भी चेंजेस अगर हम लोग को डेटाबेस में करने होंगे तो हम लोग इंटरफेस की हेल्प से उसको कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, जो है फॉर्म बेस्ड इंटरफेस, मेन्यू बेस्ड यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, स्पीच इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस, इंटरफेस फॉर पैरामेट्रिक यूजर्स, इंटरफेस फॉर द DBA. पहले देखते हैं फॉर्म बेस्ड इंटरफेस. इसमें क्या होता है कि हम लोग को एक ऑलरेडी फॉर्म दिया होता है जिसमें हमें सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं. ये नाइव यूज़र्स के लिए होता है मोस्टली, जिसमें पूरा टेम्पलेट एक गिवन होता है और बस हम लोग को उसमें अपना इनपुट देना होता है और पूरा पेज रेडी हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम वो गूगल फॉर्म्स वगैरह भरते हैं किसी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स के लिए, वो फॉर्म बेस्ड इंटरफेस में आता है. अब देखते हैं मेन्यू बेस्ड यूज़र इंटरफेस. इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोग कभी लिखते हैं, अगर हमें एप्पल फाइंड करना है तो हम लोग गूगल पे लिखेंगे ए, तो नीचे रिकमेंडेशन में कभी कभी आ जाता है ना ए एप्पल, तो हम लोग को जब मेन्यू मिल जाता है तो और हम लोग उसमें से जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेन्यू बेस्ड यूज़र इंटरफेस, कि हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं नीचे हमारे पूरा वर्ड लिखने से पहले ही, जिसको हम लोग पुल डाउन मेन्यू भी बोलते हैं. और इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है गूगल ब्राउजिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग कुछ भी ब्राउज़ करते हैं तो हम लोग को एक मेन्यू मिल जाता है जिसमें से हम लोग देख सकते हैं कि हम जो फाइंड कर रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है. या तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, हम लोग उस पर से कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो कैटेगरी दिखाता है हम लोगों को, तो जो कैटेगरी में हम लोग को चीज़ें दी होती है वो भी मेन्यू में ही आता है और उसको हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं बजट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से. तो ये जो पूरा इंटरफेस दिखाता है वो मेन्यू यूज़र इंटरफेस ही होता है. नाउ मूव टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इट इन्वॉल्व्स बोथ फॉर्म्स एंड मेन्यूज़. ओके, तो जस्ट सपोज हम लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो यूट्यूब में अगर हम लोग को कुछ सर्च करना होगा और सर्च पे जाके जब सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ रिकमेंडेशन आते हैं ना आधा लेटर लिखने के बाद, तो वो होती है मेन्यू. उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर जो हम वीडियो सर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी सर्चिंग में है कि नहीं है.
फिर उसके बाद जब सर्च करने के बाद जो हमारे पास वीडियोज़ आती हैं, तो उन वीडियोज़ को अगर हमें सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करना होता है, तो जब हम सब्सक्राइब करते हैं उस चैनल को, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। तो ये आता है फॉर्म के अंदर कि हमें ऑलरेडी चीज़ें दी हुई होती हैं, बस हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें क्या इनपुट वहाँ पे देना है। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। ओके, सो हमने अगर गूगल पे सर्च किया फास्टेस्ट कार इन इंडिया, ठीक, तो गूगल हमें क्या सर्च करके देखा, मेन वर्ड्स फास्टेस्ट, कार और इंडिया। मतलब उस सेंटेंस का वो द, इज, फॉर, वर कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ मेन कीवर्ड्स देखता है। मतलब एक नेचुरल लैंग्वेज के डिक्शनरी वर्ड्स को यूज़ करके हमें फाइनल डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाता है। मतलब इसमें जो यूज़र होता है वो एक क्वेरी जनरेट करता है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की, और अगर उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में से कुछ भी रिलेटेड सर्च होता है तो गूगल उसे हमारे सामने रख देता है। नाउ नेक्स्ट इंटरफेस इज स्पीच इनपुट एंड आउटपुट। तो जैसे हमारे पास सीरी है, ओके गूगल हो गया, एलेक्सा हो गया, उनको हम लोग वॉइस में एक इनपुट देते हैं और हमें रिटर्न में वो वॉइस में ही आउटपुट भी देते हैं। लेट्स सपोज वी आस्क फ्रॉम गूगल दैट ओके गूगल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड गूगल रिप्लाइज Delhi is the capital of India. So this is called speech input and output. Now next is interface for parametric users. So parametric operations are ones who have small set of operations that need to be performed and to repeatedly. So for example, we'll take ATM machine. तो ATM machine में एक limited operation से हम लोग perform कर सकते हैं, जैसे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, विड्रॉ मनी कर सकते हैं या पिन चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, पर ये पहले से ही प्रोग्राम होता है और हम इसमें लिमिटेड क्वेरीज लगाकर अपना काम इससे आराम से कर सकते हैं। सो फाइनली वील मूव टू द लास्ट इंटरफेस विच इज़ इंटरफेस फॉर DBA. DBA stands for Database Administrator. So this interface is only used by the DBA staff. इसमें कुछ प्रिविलेज्ड कमांड्स होते हैं जो सिर्फ DBA स्टाफ यूज़ कर सकता है, जिसमें क्रिएटिंग अकाउंट, सेटिंग सिस्टम पैरामीटर्स, गारंटिंग अकाउंट ऑथराइजेशन और चेंजिंग स्कीमा जैसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं डेटाबेस में। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द DBMS. I hope this video is useful for your examination, and if yes, then please like, comment and subscribe. And the next part is also coming soon. Thanks for watching.